Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. शुभेंदु अधिकारी और सुकान मजूमदार ने ममता सरकार पर तीखा हमला किया। बांग्लादेशी होने के संदेह में ओडिशा में पीट कर हत्या, मुर्शिदाबाद के प्रवासी मजदूर की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। जय बांग्ला बोलने वालों की खैर नहीं, अर्जुन सिंह ने निहाटी में पाठभूमि को दी खुली चुनौती। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा અને જીતनुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। शुभेंदु अधिकारी और सुकान मजूमदार ने ममता सरकार पर तीखा हमला किया। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश की स्थिति और बंगाल की ममता सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए एक और 1971 जरूरी है और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम उठाने का संकेत दिया। उन्होंने राज्य में सुशासन 2011 के असफल परिवर्तन और आरजीकर मामले में अदालतों की अनदेखी पर भी कटाक्ष किया। तो वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने संदेश खाली, ठाकुरबाड़ी, सीएए और बांग्लादेश संकट समेत कई मुद्दे पर ममता सरकार पर सवाल उठाया और भाजपा की आगामी जीत का भरोसा जताया। দেখুন, মমতাওয়ালা ঠাকুরকে যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবহার করছে, মানে এই দুই মমতার যে বিষাক্ত কম্বিনেশন, এই বিষাক্ত কম্বিনেশনের ফলে ঠাকুরবাড়ির মতো একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হচ্ছে। আমরা চাই না যে ঠাকুরবাড়ি রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হোক। ঠাকুরবাড়ি আমাদের জন্য শ্রদ্ধাস্থান, আমাদের জন্য তীর্থক্ষেত্র। তীর্থক্ষেত্রে এই ধরনের রাজনীতি আমরা পছন্দ করি না। আমরা মনে করি যে ঠাকুরবাড়ি থেকে এই ধরনের রাজনীতি দূরে থাকা উচিত। এবং শান্তনু ঠাকুরের সাথে গতকাল আমার কথা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রীর সাথে, এবং তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন। প্রয়োজনে আগামী দিনে আরও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। সেই সরকার প্রকৃত সুশাসন দেবে। 11তে আমরা লড়ে খেটে অনেক করে মানুষকে বুঝিয়ে পরিবর্তন এনেছিলাম, সেই পরিবর্তন আসল পরিবর্তন হয়নি। সেই পরিবর্তনের সুফিয়ানের বাড়ি হয়েছে, শাহউদ্দিনের বাড়ি হয়েছে, গরিব মানুষ গরিব থেকে গেছে। আসল পরিবর্তন এবারেই আসবে, সেটা নরেন্দ্র মোদীজির আদর্শে, তার নেতৃত্বেই আসবে। অটলজির স্বপ্ন পূরণ হবে, সেই সরকার তৈরি হবে। দাদা, অরাজকতার বাংলাদেশে সেখানকার ট্রাক চালকরা এমনই বলছেন যে তাদেরকে ট্রাক দাঁড় করে লুটপাট চলছে, সেখানে ভাঙচুর করা হচ্ছে, মারধর করা হচ্ছে। ওখানে একটা সরকার আছে নি? কিছু ইতর, কিছু বাঁদর, কিছু জঙ্গি, কিছু উন্মাদ, কিছু ধর্মান্ধ, কিছু মৌলবাদী, যাদেরকে পশুর সঙ্গে তুলনা করলে পশুকে অপমান করা হবে, তাদের হাতে চলে গেছে। ओडिशा के संभालपुर में बांग्लादेशी होने के संदेह में मुर्शिदाबाद के प्रवासी मजदूर जुलैन राणा उम्र 21 वर्ष की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है और दोषियों की कड़ी सजा की मांग तेज हो गई है। 3 বছর থেকে পরে এটা এমনি ছেলে হলো করে এক নম্বর, এইটাই একটাই ছেলে আমার, দুটা মেয়ে, একটা মেয়ে বড়, তারপরে এটা মেজো ছেলেটা 1 নম্বর। হ্যাঁ, ওটা আমার ভরসাতে আমি সব করি, ওর স্বপ্ন ছিল আমি। আমার ছেলেকে খুন করেছে, তার আমি শাস্তি চাই। আমি মমতা ব্যানার্জির কাছে কোনো আমি সাহায্য চাচ্ছি, না চাই বাড়িতে আমি চাইছি। আপনার নাম? আমার নাম নাজমা বিবি। কোন জায়গা এটা? এটা হচ্ছে চক বাহাদুরপুর। निहाटी में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने पाठभूमि को चुनौती देते हुए कहा कि जय बांग्ला बोलने वालों की खैर नहीं होगी और हिंसा की चेतावनी दी। उन्होंने इसे बांग्लादेश से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि इसके माध्यम से सनातनी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा सकता है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने उनके बयान की कड़ी निंदा की। হ্যাঁ, বলছি তো, বললাম, এখনো বলছি, আপনাকেও বলছি কি যে পার্থভূমি আজকে বাংলাদেশে যে কথাটা বলেছিল যে জয় বাংলা বলে নাকি আমি বলেছিলাম পেটাবো, আমি আজকে বলে যাচ্ছি যেভাবে বাংলাদেশে হিন্দু নিধন করা, দীপু দাসকে খুন করে পুড়িয়ে দেওয়ার সময় জয় বাংলা বলছে, চন্দন দাস হরগোবিন্দ দাসকে যখন কোপাচ্ছিল তখন জয় বাংলা বলছিল। এই জয় বাংলা বলে কোনো সনাতনী হিন্দু কাছে যখনই বলতে যাবে, পোড়াতে যাবে, মারতে যাবে,
তখন এই জয় বাংলা যারা রোহিঙ্গা मुसलमानরা বলবে তাদেরকে থাপড়াবার দায়িত্ব আমাদের আছে। देखिए उसका तो नाम ऐसे भी चेंज हो जाएगा क्योंकि उसका बाप का ठीक नहीं है, उसका 16 ठो बाप है, मेरा एक बाप है और उसको चैलेंज देने लायक नहीं है। लेकिन उसको एक बात कहता हूँ कि 2019 साल में 6 महीना के लिए भागना पड़ा था उसको। हम 2024 और 2021 के बाद यहाँ हैं और यहीं रहेंगे। उसका क्या होने वाला है वो खुद जानता है। सिलीगुड़ी के हाकिमपाड़ा इलाके में पति पत्नी की रहस्यमय मौत ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। परिजनों ने अंतिम सरकार की गोपनीयता पर संदेह जताया। परिवार ने बेटे सोमदीप सरकार समेत कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और हत्या की साजिश की आशंका जताई है। स्थानीय लोग और परिजन निष्पक्ष जांच, दोषियों की पहचान और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुट चुकी है। নোটিশ দিয়ে সবাইকে ডেকেছে, পুলিশ তদন্ত শুরু করছে, নোটিশ দিয়ে সবাইকে ডেকেছে। আমাদের প্রশ্ন যে বাবা মারা যাবার দিন যারা ডেড বডি নিয়ে গেল, যে কয় ব্যক্তি, আবার মা মারা যাবার দিন সেই কয়জনই, পাশের কমন ওয়াল, পাশের বাড়ি, কেউ সামনের বাড়ি কেউ জানতে পারলো না। মানুষ তো বিপদে পড়লে সবার আগে আশেপাশের বাড়ির লোককে ডাকে, এই ক্ষেত্রে কেন হলো না? আমাদের নিচে 5টা স্টুডেন্ট ভাড়া থাকে, আমাদের নেপালি ভাইরা 5 জন নিচে ভাড়া থাকে যারা শিলিগুড়িতে পড়াশোনা করে। একটা ডেড বডি নামাতে গেলেও 4 জনকে লাগে, সে 5 জন ছেলের মধ্যে একজনকেও ডাকা হয়নি। তারা পরের দিন জানতে পেরেছে, যারা ভাড়া থাকে তারা পরের দিন জানতে পেরেছে। আমরা তার সাথে কথা বলতে পারি। একই প্রশ্নটা যে জায়গায় যে বাবাকে যারা শ্মশানে নিয়ে গেল, তারা আবার মাকেও একই ব্যক্তির শ্মশানে নিয়ে গেল। বাবার, আমরা এখন শুধু মার মৃত্যু না, বাবার মৃত্যুর তদন্ত চাই। মানে কোন ফাঁড়ি, মানে এটা ফাঁড়ি না, এটা পয়েন্টে ফাঁড়ি, শিলিগুড়ি থানার আন্ডারে। মানে তাদেরকে আপনার তারা এসছেন, পরের দিনই এসছেন, বাড়ির লোক থানায় কমপ্লেন করেছেন। তার এগেনস্টে আমি যতদিন জানতে পেরেছি পুলিশ আমাদের এখানে বলে গেছে, নোটিশ করে সবাইকে ডাকা হচ্ছে। ঠিক আছে, কিছু ব্যক্তিকে পুলিশ সন্দেহ করছে বলেছে, কিন্তু আমরা আর সন্দেহ না, এখন আমরা তদন্তের শেষ পর্যায়ে যেতে চাই। सिलीगुड़ी में सीसीटीवी और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। सिलीगुड़ी के पीडब्ल्यूडी इंस्पेक्शन बंगले में बुधवार को सीसीटीवी, ट्रैफिक व्यवस्था और अन्य नागरिक समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर सहित ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही शहर में जाम की समस्याओं को कम करने और आम लोगों की सुविधा के लिए बाजार क्षेत्रों में पार्किंग प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया। खास तौर पर हॉकर्स कॉर्नर, महावीर स्थान समेत अन्य वेस्ट बाजार इलाकों में पार्किंग व्यवस्था विकसित करने पर सहमति मिली। शहर की सुरक्षा बढ़ाने और ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक संगठित करने के उद्देश्य से इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें संबंधित विभागों के समन्वय से जल्द प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। बैठक के बाद मेयर गौतम देव एसजेडीए के चेयरमैन दिलीप दुग्गर के साथ पैदल ही हॉकर्स कॉर्नर का निरीक्षण करने पहुंचे और स्थानीय व्यापारियों से बातचीत की। मौके पर हालात का जायजा लेने के बाद दिलीप दुग्गर ने कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक सभी कदम जल्द उठाए जाएंगे। सीसी कैमरा मॉनिटरिंग এটা পুলিশ মনিটরিং করবে, হাই রেজলিউশন ক্যামেরা ওদের যেরকম প্রয়োজন সেটা ওরা একটা অডিট করছে। শিলিগুড়িতে পাড়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে এখানে সিসি ক্যামেরা আওতায় আনা আছে। এটাকে একটা কম্প্রিহেন্সিভ সিসি ক্যামেরা ডেভেলপমেন্ট, সেখানে এসজেডি একটা বড় রোল থাকছে, এখানে আইটি ডিপার্টমেন্ট থাকবে এবং আমাদের পুরসভা থাকবে। পুলিশ তো এটা মূল দায়িত্বে থাকবে, কারণ ওরাই এই কাজটা সবচেয়ে এক্সপার্টিজ আছে, ওরা করতে পারে। সেটা ওরা করছে, করে একটা আমাদের ডিটেল একটা সাজেশন দেবে, দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি এই কাজটা আমরা স্টার্ট করব। এর মধ্যে ট্রাফিকের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশন হয়েছে, যেটা অলরেডি স্টার্ট হচ্ছে। 10টা শিলিগুড়ি ভেতর দিকটায় কমিশনারেট এলাকা আপ টু ঘোড়া মোড় পর্যন্ত।
सिलीगुड़ी के फुलबारी कैनाल में एक महिला का शव बरामद, इलाके में सनसनी। सिलीगुड़ी शहर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। क्रिसमस की सुबह सिलीगुड़ी के फुलबारी इलाके में एक महिला का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार फुलबारी कैनाल में जिस महिला का शव मिला है उनकी पहचान 63 वर्षीय मनेश्वरी राय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो बीते 18 तारीख से लापता थी। परिवार के मुताबिक 18 तारीख की सुबह करीब 9 बजे मनेश्वरी राय के बेटे विजय राय और उनकी पत्नी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकली थी। कुछ देर बाद मनेश्वरी राय भी घर से बाहर चली गई। दोपहर में जब विजय राय और उनकी पत्नी घर लौटे तो मनेश्वरी राय को घर पर नहीं पाया। काफी खोजबीन के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिलने पर विजय राय ने न्यू जलपाईगुड़ी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में तलाश के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसी बीच बुधवार सुबह फुलबारी केनाल से एक महिला का शव मिलने की खबर फैलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने महिला को पहचान कर उनके परिवार को सूचना दी। इसके बाद विजय राय और परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और शव की पहचान मनेश्वरी राय के रूप में की। हालांकि महिला का शव फुलबारी केनाल में कैसे पहुंचा, इसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। सूचना मिलने पर न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। মা হয় কি নাম? মনেশ্বরী রায়। কয় তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিল? 18 তারিখ। কোথায় বাড়ি? সবাবিটা। সবাবিটা। কি এখন কোথায় দেখতে পেলে? কোথায় দেখতে পেলে? এই যে এখানে ব্রিজে, মা আনন্দা ব্রিজে। কি করে খবর পেলেন? মোবাইলে দেখলাম আর আমার একটা শ্বশুর ফোন করছিল। এখন চিনতে পারলেন? হ্যাঁ ওইটা হ্যাঁ। কি দেখে চিনতে পারলেন? ওনা কি ওই যে বালজ আসে আর নাল সুতা আসে। হ্যাঁ। কি কারণে এর মা শরীরে মাথার মধ্যে কোনো রকম খারাপ ছিল? মাথা একটু ডিফারেন্স ছিল। হ্যাঁ এমনি ঠিকই কথাবার্তা। বয়স কত হলো? 63 বছর। विजय राय। बाड़ी कोথায়? सभाबिटा। सिलीगुड़ी में भीषण आग में जलकर राख हुआ मछुआरे का आशियाना, बेघर हुआ परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा। जलपाईगुड़ी जिले के फुलबारी अंतर्गत पश्चिम धनतला इलाके में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ एक भीषण आगजनी में एक गरीब परिवार का घर और उसमें रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस हादसे ने परिवार को ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर कर दिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार घर के मालिक पर सरकार पेशे से मछुआरे हैं और मछली पकड़कर ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। रोज की तरह वो आज सुबह नदी में मछली पकड़ने गए थे। घर पर उनकी पत्नी और उनकी 3 छोटी बेटियां मौजूद थी। अचानक पड़ोसियों ने घर से काला धुआं निकलते देखा। ग्रामीण जब तक घर पर पहुंचे तब तक पूरा आग रूप ले चुकी थी। घर की महिलाएं और स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन जब तक सफलता मिली तब तक घर के अंदर रखा अनाज, कपड़े और जमा पूंजी सब कुछ जलकर राख हो चुका था। इस आपदा के बाद असहाय परिवार के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित क्रिसपत सरकार और उनकी पत्नी ने रोते हुए प्रशासन और समाज के संपन्न लोगों से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा है कि घर में 3 छोटी बच्चियां हैं, अब उनके साथ हम कहां जाएंगे और क्या खाएंगे ये समझ नहीं आ रहा है। इलाके के लोगों ने भी स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि इस गरीब परिवार को तुरंत सरकारी सहायता और पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए ताकि वो फिर से अपना सिर ढकने की जगह पा सके। গেছি মাছ ধরতে। আমি তো এখন মৎস্যজীবী, মাছ ধরে মাছ বিক্রি করে খাই। মাছ ধরতে গেছি সকাল 6:30টার সময়। মাছ ধরতে গেছি তখন তো আমি জানি না, আমার পাশে বাড়ির ছেলে যে আমাকে ডাকতেছে, বলে বাবা তোমার ঘরে আগুন লাগছে। পরে আসে দেখি ঘরে সব লাইন টাইন সব ঘরের লাইন মিটার টিটার সব ঠিক আছে, সব কিছু কমপ্লিট, কোনো শর্ট সার্কিট হয় নাই। কিন্তু মোবাইলটা সকালবেলায় চার্জে দেওয়া হয়েছিল। ওই মোবাইল বাস্ট হয়েছে, সেখানে মোবাইলের সাথে মোবাইল ওই টিভি মোবাইল সেট টপ বক্স সমস্ত তার ওখানটাই ছিল। আর ওখানে আমার ঘরে বছরে শিবরাত্রি হয়, শিবরাত্রির যত মানে নিরামিষ প্লাস্টিকের বাসন, ওই ঘরে যে তিরপাল টানা যে পূজা করা হয় সেই তিরপাল সমস্ত ওই টিভির উপরেই ছিল। টিভির উপরে সব উপরে ঝুলানো ছিল, কারণ আমি গরিব মানুষ, আমাদের ঘরে জায়গা নেই। আমি একটা ঘরেতে রান্না করি, একটা ঘরে থাকি খাই, ওই একটা ঘরের উপরে সমস্ত ঝুলায় উপরে রাখা ছিল। সেই সমস্ত সেই প্লাস্টিকের থেকে আগুন লাগার পরেই ঘরে খাট
বা শোয়ার বিছনাপত্র কোনো কিছু নেই। আমি শুধু যেটা মানে নদীতে মাছ ধরতে গেছি যেটা পরে আছি শুধু এটাই আমার আছে, আর কিছু নেই। সমস্ত রেশন কার্ড, আধার কার্ড, সমস্ত যা আছে সমস্ত ডকুমেন্টস পুরে শেষ। ঘরে কিছু টাকা পয়সা ছিল সেটাও নেই, সেটা সব পুরে ছাইয়ে গেছে। মোবাইল চার্জে দেওয়া, চার্জ সকালবেলায় চার্জে দেওয়া হয়েছে। আপনার ফ্যামিলিতে কে কে রয়েছে? ফ্যামিলিতে আমার 2 মেয়ে, ছেলে আর আমি, 4 জন। সেই সময় বাড়িতে কেউ ছিল না যখন? বাড়িতে ওরা ছেলে বউ ওরা ওই গ্রাম রোদটা পাচ্ছিল। কিভাবে বুঝতে পারলো আগুন লাগছে? ওই যে পাশে থেকে লোক চিলাচিলি করে কয় তোমাদের ঘরে ধোঁয়া ধোঁয়া, কি পেপার ধোঁয়া, ওই ধোঁয়া দেখে দৌড়ে আসছে, আসে দেখে ঘরে মোবাইল বাসতেই আগুন। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे स्माइल बिग होगा, होम में कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बारलिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालि? What's your favorite beverage? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Food, butter chicken, Home Interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।
सिलीगुड़ी में क्रिसमस के अवसर पर प्रधान नगर चर्च में भव्य प्रार्थना सभा और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोगों ने भाग लिया और प्रेम भाईचारे का संदेश साझा किया। चर्च और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और लोगों ने मैरी क्रिसमस कहते हुए खुशियां और उपहार बांटे। डुअर्स में क्रिसमस की सुबह जंगली हाथी के हमले में 52 वर्षीय पवित्र राय की मौत हो गई। घटना परिवार के सामने ही हुई। वन विभाग और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि ग्रामीणों ने निगरानी बढ़ाने और मुआवजा की मांग की है। सिलीगुड़ी में 1.5 महीने पुरानी चोरी का मामला सुलझा। पुलिस रिमांड के दौरान सोने के जेवर और नकदी बरामद। एनजीपी थाना पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए चोरी किए सोने के आभूषण और नकद 3000 बरामद करने में सफलता हासिल की है। ये कार्रवाई पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से की गई करीब पूछताछ के बाद संभव हो सकी। घटना करीब 1.5 महीने पहले की है। फुलबारी 1 नंबर अंचल के सिपाहीपाड़ा निवासी स्वपन मंडल के घर पर देर रात अज्ञात चोरों ने धावा बोला था। घर से कीमती सोने के जेवर और नकदी चोरी हो गए थे। इसके बाद पीड़ित परिवार ने न्यू जलपाईगुड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में जुटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 1.5 महीने बाद जलेश्वरी इलाके से मुख्य आरोपी विश्वजीत उर्फ लादेन को दबोच लिया। लादेन से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस गिरोह के 2 अन्य सदस्यों प्रसन्नजीत राय और विश्वजीत राय को भी गिरफ्तार कर लिया था। तीनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश कर 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर एनजीपी थाने की पुलिस टीम ने मोरबजा इलाके से एक लावारिस सरकारी क्वार्टर में छापेमारी की। वहां से चोरी किए गए सोने के आभूषण और 3000 नकद बरामद किए गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आज तीनों आरोपियों को दोबारा जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये गिरोह शहर में और कौन-कौन चोरियों में शामिल रहा है। उत्तर बंगाल में कड़ाके की ठंड के बावजूद जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी और डुअर क्षेत्र में लोग परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं प्रशासन ने सभी प्रमुख पिकनिक स्थलों को प्लास्टिक मुक्त घोषित कर पर्यावरण और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। সকলেই জানেন যে তিস্তাস পারে মানুষ এই সময়টায় পিকনিক করতে আসে এবং এই পিকনিকের মরশুমে প্লাস্টিক ব্যবহারের প্রবণতা মানুষ অজ্ঞাতসারেই মানুষ প্লাস্টিক ব্যবহার করতে থাকে। তো সেই ব্যাপারটাকে আমরা দূরীভূত করার জন্য, প্লাস্টিক নিরসনের জন্য, তিস্তাস পার্কে প্লাস্টিক মুক্ত একটা পরিবেশ তৈরি করার জন্য আজকে আমরা এখানে সবুজ সোপান নামে একটি দোকানের উদ্বোধন করলাম। এখানে এসএইচজি দিদিরা আমার আছেন, তারা এবং আমার ভিআরপি যারা বোনেরা আছে তারা সকলে মিলে এই দোকানটা চালাবে এবং এখানে সুলভ মূল্যে যে বাজার যা মূল্য সেই মূল্যে এখানে শালপাতা এবং মাটির গ্লাস বিক্রি হবে এবং মানে এখানে একটা গেট আমরা নির্মাণ করব। যারা পিকনিক করতে আসবে তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করব, করজোরে নিবেদন করব, আপনারা সকলে প্লাস্টিকের থালা এবং প্লাস্টিকের গ্লাস বর্জন করে আপনারা শালপাতা ব্যবহার করুন, মাটির গ্লাস ব্যবহার করুন। যদি কেউ ব্যবহার করে তাদের উপর। जलपाईगुड़ी में ठंड के बीच तृणमूल कांग्रेस के युवा अध्यक्ष राम मोहन राय ने बेसहारा लोगों को कंबल वितरित कर क्रिसमस की खुशियां साझा की। बड़े दिन की रात उन्होंने जिले के विभिन्न चर्चों में फादरों के साथ केक काटा और बच्चों में चॉकलेट बांटे। इस पहल के माध्यम से उन्होंने सभी धर्मों के त्यौहार प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाने का संदेश दिया। प्रथमत हमारे দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সবসময় শিখিয়েছেন সব ধর্মের উৎসবকে সুন্দরভাবে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে। আর আজকে 25শে ডিসেম্বর আপনারা জানেন বড়দিন, আর সেই 25শে ডিসেম্বর সেই উৎসবটাকে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমাদের দলনেত্রীর নির্দেশ ও আমাদের দলের সেনাপতির নির্দেশেই আজকে আমি জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন চার্চে গিয়ে সেখানে গিয়ে সেই ফাদারদের সঙ্গে দেখা করছি এবং তাদের সঙ্গে একসঙ্গে কেক কাটা ও বাচ্চাদের সঙ্গে চকলেটের অনুষ্ঠানে আমরা ভাগ করে নিচ্ছি। পাশাপাশি আজকে রাতব্যাপী আমাদের দলনেত্রী এবং সেনাপতির নির্দেশে সারা রাতব্যাপী আমরা বিশেষ করে আজকে ভবপুরে যারা রাস্তায় থাকে তারা বিশেষ করে এই কনকনে ঠান্ডায় যথেষ্ট কষ্ট পায়, তাদের গায়ে আজকে আমরা শীতবস্ত্র অত কম্বল তাদের গায়ে জড়িয়ে দিব
এই ঘন কুয়াশার মধ্যে তাদের কিছুটা কষ্ট যেন লাঘব হয়। আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আজকে সারা রাতব্যাপী আমরা বড়দিনের অনুষ্ঠানটাকে এভাবেই ভাগ করতে চলেছি। दक्षिण 24 परगना के बसांती में एक घर खाली में संदिग्ध विस्फोट से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस बम या सिलेंडर ब्लास्ट की जांच में जुट चुकी है। घटनास्थल से सूतली टुकड़े बरामद हुए हैं और संदिग्ध अवशेष मिलने से बम विस्फोट की आशंका है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर ये बम धमाका था तो वो बम उस खाली घर में कहां से आया। কি হয়েছিল ঘটনাটা কিছু শুনেছেন? শুনেছি, বলবো যে এটা একটা মৃত্যু বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছিল। সেখানে ওই লোকজন খাওয়ানো হচ্ছিল দূর থেকে। খাওয়ার পরে আমি ওই একটা পথশ্রী রাস্তা উদ্বোধন করার জন্য রাজা বললো তো 3টের সময় কালকে যাব। আমি পথশ্রী রাস্তার ওই লোকজনের খবর দিতে গিয়ে এসে শুনলাম যে বলছে সিলিন্ডার বাস্ট হয়ে একটা ছেলে আক্রান্ত হয়েছে। তা পুলিশ এসছে, আবার কেউ কেউ বলছে যে তদন্ত করছে যে কোন বিষয়ে কি বা বোমের আঘাত হচ্ছে কি আমি ঠিক বলতে পারবো না। বলছে তো তদন্ত করছে পুলিশ, ও বিষয়টা আমার বলতে পারবো না। হসপিটালে নাকি ছেলেটা নিয়ে গেছে এই পর্যন্ত। কি নাম আপনার? আমার নাম অজিত পিয়াদা।